Good evening, students. In class 12th, we have completed fourth chapter, which is all about the reproduction parts. And today we are going to start a new chapter, which is environmental issues. I think this is your 16th chapter of your biology. And as per my opinion, and MP board syllabus has not been cut out, and you will have to follow all the 16 chapters. Okay. So here we are going to start the new chapter, environmental issues, because we know that environmental is a term which related to environment where we are living. Okay, living beings, animals, plants, and many more. So in environment there is a certain type of impurities which create problems for the human beings, for the plants, and for animals also. Okay, now I want to know which type of impurities are there which are creating problems for all the organisms. So before starting, we have to clear that it is a small chapter and it will take 2 to 3 period to complete it. Okay, now you all have to focus about the environmental issues because it is the most problematic conditions where we are living. Okay, now first point is that environmental issues are generally created by most of the impurities substance which are wandering in our environment day to day. Okay, now first go through the points. Pollutions. What is the meaning of pollution? Pollution से मतलब क्या होता है? We know that pollutions is an undesirable change. Undesirable change मतलब हम जिसको चाहते नहीं है वैसा change उसको undesirable कहते हैं. The pollution is a undesirable change इज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्सपेक्ट के हिसाब से. ठीक है, जो पॉल्यूशंस होते हैं वो अनडिजायरेबल होते हैं, जो हमारे उम्मीद से परे होते हैं, वो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फॉर्म में किसी ह्यूमन बींग्स को, किसी भी जानवर को या किसी भी चीजों को जब वो नुकसान पहुंचाते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड पॉल्यूशंस. हम उसे पॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं. इन इंग्लिश we have to know the meaning of pollution, that is the undesirable change in the physical, chemical, biological aspect of environment which makes it harmful for humans and for other living organisms. Other living organisms का मतलब ये है कि human beings के साथ साथ जो भी छोटे मोटे small insects हैं या animals हैं, ये pollutions उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं. Okay, pollutions means it is a very dangerous things. Okay, it also become the dangerous threat for all the entire world. ये पूरे entire world के लिए pollution जो है बहुत ही डेंजरस चीज है, क्योंकि अगर ये डे बाय डे इंक्रीज होते जाएगा तो हमारा जो पॉपुलेशन है इट विल डिक्लाइन. हमारा पॉपुलेशन कम होते जाएगा. ठीक है, पॉपुलेशन भी कम होने का क्या कारण है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो वी हैव डिस्कस द पॉल्यूशन. पॉल्यूशन मीन्स होता है अनडिजायरेबल चेंज जो फिजिकल में या बायोलॉजिकल में या केमिकल फॉर्म में हो, उससे हम पॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं. एंड द पॉल्यूशंस कैन बी स्प्रेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूशंस को फैलाने के लिए बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम एजेंट्स ऑफ पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. उन्हें हम एजेंट कहते हैं क्योंकि वो पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं. सपोज हमने इससे पहले भी बहुत सारे पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है. एयर पॉल्यूशंस, सॉइल पॉल्यूशंस, ठीक है, नॉइस पॉल्यूशंस, थर्मल पॉल्यूशंस, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस. तो ये सब जितने भी पॉल्यूशंस हैं इनका कोई ना कोई एक सोर्स है जिससे ये पॉल्यूशंस को फैलने के लिए मदद करते हैं. एंड दीज सोर्सेस आर कॉल्ड एजेंट्स. हम उन्हें एजेंट्स कहते हैं या फिर उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. सो हियर द पॉल्यूटेंट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड प्रॉपर फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन. ये प्रॉपर फंक्शंस उन्हें प्रोवाइड करते हैं कि उनकी संख्या और धीरे धीरे इंक्रीज होते जाए. उसे हम पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं. बट ड्यू टू देयर इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन वैल्यू, द पॉल्यूशंस प्ले endemic role in our India. That's why the government of different institutions taken serious environmental act which is passed in 1986. हमारे इंडिया ने 1986 में एक प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल एक्ट बनाया जिसमें हमारे एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए काफी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत हमारे इंडिया में
इसको काफी ध्यान दिया गया और इसके बाद फिर धीरे धीरे हम पॉल्यूशंस को कम करने के पीछे लग गए। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जनरली 1 मार्क्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड व्हेन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज पास्ड। इट इज पास्ड इन 1986 और इस मुहिम का नाम क्या था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंट को बचाना, उसे हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते थे। ठीक है, जो कि 1986 में पास हुआ था बाय इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अपने इंडिया में। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हमने पॉल्यूशन तो देखा, पॉल्यूशंस क्या होते हैं, पॉल्यूशन फैलाने वाले एजेंट्स को हम क्या कहते हैं। देन इन सारी चीजों को सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1986 में क्या स्टेप लिया। Now we are going to discuss the types of pollution. Generally pollution has different types. बहुत सारे types होते हैं, but in your chapter there is 5 to 6 types are given and we will discuss only that part. Okay. Now first we are going to discuss and that is air pollutions. सबसे जो पहला पार्ट है वो आपका है एयर पॉल्यूशन। सेकंड, एयर पॉल्यूशन के बाद वाटर पॉल्यूशन। जब भी पॉल्यूशन वाटर्स में इन्वॉल्व होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन होते हैं। जब पॉल्यूशन एयर के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वो एयर पॉल्यूशन होता है। देन वी हैव टू डिस्कस दैट लैंड पॉल्यूशन। समटाइम्स लैंड पॉल्यूशन कॉल्ड ओके सॉइल पॉल्यूशंस। कभी कभार लैंड पॉल्यूशंस की जगह पे सॉइल पॉल्यूशंस का नाम आता है। एंड नेक्स्ट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस में देयर इज अ थर्मल ओके थर्मल पॉल्यूशन इज ऑल्सो देयर। ठीक है, थर्मल पॉल्यूशन भी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स वगैरह एक्सप्लोड होते हैं, तो एक्सप्लोड होने के साथ साथ ये बहुत सारे पॉल्यूशंस को अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं। तो जब ये इन्वायरमेंट में क्रिएट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रोल प्ले करता है पॉल्यूशंस को इंक्रीज करने में एयर के फॉर्म में। जैसे न्यूक्लियर वेपन, हाइड्रोजन बॉम्ब, हमने काफी सुना है इसमें, हिरोशिमा और नागासाकी के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द साउंड पॉल्यूशन। समटाइम्स साउंड पॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉइस पॉल्यूशन। साउंड पॉल्यूशन को नॉइस पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। सो here we have discussed the 5 types of pollutions in this chapter and we will also discuss some more important facts. But before starting the actual air pollution, we have to take the serious decision why the pollutions are spreading in India okay day by day. So first there is a several types of steps by which pollutions can be spreaded and which type of steps we are going to see that द मेन रीजन फॉर पॉल्यूशन। इनका जो मेन रीजन है पॉल्यूशन फैलाने का, ये जो पॉल्यूशन फैल रहे हैं उनका सबसे बड़ा इंपैक्ट रोल प्ले होता है ड्यू टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। हमें पता है कि डे बाय डे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है और डेथ रेट हमारी कम होते जा रही है। देन इफ द ह्यूमन पॉपुलेशन जो इनकी साइज है ग्रोन इनॉर्मसली मतलब बहुत ज्यादा संख्या में इनकी जो साइजेस है वो इंक्रीज होती है। तो जब इनकी मात्रा ज्यादा होते जा रही है इसके बाद इट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर फूड। इनको खाने की जरूरत, पानी की जरूरत, रहने के लिए घर की जरूरत, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और ऑटोमोबाइल्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए ह्यूमन बींग्स जनरली क्या करते हैं, वो जनरली दे कट डाउन द ट्रीज, they cut down the forest okay for their personal uses। वो अपने पर्सनल यूजेस के लिए बहुत सारी चीजों को काटते हैं, अपना घर बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजों में उसका यूज करते हैं, जिससे हमारा जो प्लांट है वो फॉरेस्टेशन वो हमारा डिस्ट्रॉय होने के कारण वो पॉल्यूशन को ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे उनके रीजंस हैं। जब ये सारी चीजों की ह्यूमन बींग्स को जरूरत पड़ी, वाटर की, होम की, इलेक्ट्रिसिटी की, ऑटोमोबाइल्स की, इसके लिए इंसान जो है ज्यादातर पॉल्यूशन को बढ़ाने में, जैसे ऑटोमोबाइल्स पहले बहुत कम यूज हुआ करती थी, आज के डेट में ऑटोमोबाइल्स ज्यादा यूज होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर द यूजेस ऑफ दैट सिस्टम इट एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑन आवर नेचुरल रिसोर्सेस। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन, उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये इस तरह का ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं जिस कारण से हमारे नेचुरल रिसोर्सेस भी धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेस मींस व्हाट इज दैट, दैट इज वाटर, दैट इज प्लांट। ठीक है ना, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, इनके यूजेस के कारण, ड्यू टू इनॉर्मस पॉपुलेशंस, इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है जिस कारण से हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट टॉपिक एंड इट इज इट रिजल्ट
द पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। यही कारण है कि इसका जो रिजल्ट है वो हमें पॉल्यूशंस मिलते हैं किसमें देखने को, एयर में, उसके साथ साथ वाटर में, देन सॉइल में, ठीक है। इन सारी चीजों को हमें इन सब मोड पे देखने को मिलता है। नाउ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ अवर एनवायरनमेंट इज द पॉल्यूशन। इन सारी कारणों को देखते हुए हमें एक्चुअल फॉर्म में पता चला कि जो बिगेस्ट थ्रेट है हमने इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का, वो पूरा का पूरा पॉल्यूशन के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है, जिसका डर है, वो पॉल्यूशन है। एंड पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये हमेशा बढ़ते जा रहा है, ये कम नहीं होता है। ओके, नाउ I think all the topics are clear, but today we will also see the some important functions and important air pollution system. What is air pollution? How it is impact the play the important role for avoiding such type of circumstances, and we will also discuss the effect and their control method. Okay, so here we have to discuss the exact meaning of air pollutions. Generally, what we know about the air pollutions. So firstly, I want to tell you that air pollutions is a generally important term. When the pollutions carried by the form of air is called air pollution. जब pollutions हवाओं में होता है तो वो पूरा का पूरा एक जो टर्म है वो हमारा एयर पॉल्यूशन बन जाता है। एंड इट इज ऑल्सो अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल aspect of air which makes it harmful for humans and for other organisms or living organism also. This is called air pollution, ठीक है। जब भी कोई एयर मटेरियल्स जो होते हैं, जैसे पार्टिकुलेट हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, हायर कंसंट्रेशंस ऑफ CO2 हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे जब हमारे एनवायरनमेंट में एक्सेस मात्रा में होते हैं तो ये पॉल्यूशंस फैलाते हैं। एंड दिस पॉल्यूशंस इज कॉल्ड एज एयर पॉल्यूशंस, ठीक है। उन पूरे पॉल्यूशंस को हम एयर पॉल्यूशंस के नाम से जानते हैं, बट वी डोंट नो द एक्चुअल अफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशंस। एयर पॉल्यूशन तो हमने जान लिया कि पॉल्यूशंस में जब एयर के माध्यम से जो भी इम्प्योरिटीज इन्वॉल्व होती है उसे हम एयर पॉल्यूशंस कहते हैं। बट देयर इज अ सीरियस एंड सीवियर इम्पैक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशंस इन लिविंग बीइंग्स। एंड व्हाट इज दैट, वो सब क्या है, उसे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले देयर इज अ सीवियर केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें जो सबसे पहला केस होता है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू द इम्प्यूरिटीज इन एयर। एयर के कारण जो भी इनहेल और एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं और सांस को रिलीव करते हैं, तो उस समय ये इम्प्यूरिटीज ज्यादा इन्वॉल्व होती है। सेकेंड केस वी हैव टू डिस्कस दैट due to the high concentration of CO2 the plant also behave some destructive manner। plants को generally हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बेनिफिशियल्स होते हैं, but due to the higher concentration of CO2 it also creates problem। इनकी मात्रा ज्यादा हो जाने से हमारे एटमॉस्फेयर में हायर कंसंट्रेशन के कारण सफोकेटिंग, यानी जो जहां तक इंसान को रहने में काफी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, सफोकेटिंग मींस सांस लेने में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें होती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन द प्री मैच्योर प्लांट्स ऑल्सो गेट्स टू डाई स्टेज। जो प्री मैच्योर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे ऐसे प्लांट्स जो मैच्योर नहीं हो पाए हैं ड्यू टू द एयर पॉल्यूशंस, they also get to the die stage। वो die stage में चले जाते हैं और धीरे धीरे उनकी जो डेथ है वो रैपिडली मोड पे होती है। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से उनके अंदर जो डेथ का सिस्टम है वो फॉलो होने लगता है, ठीक है। ये सब एयर पॉल्यूशंस के कारण होते हैं। एयर पॉल्यूशंस के कारण बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है, जो भी होते हैं, ये भी बहुत ही कम समय में इनमें भी रैपिडली डेथ देखने को मिलती है। ये बहुत कम समय में और बहुत ज्यादा मात्रा में ये मरने लगते हैं, ठीक है, ड्यू टू द एक्शंस ऑफ एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट इन एयर पॉल्यूशन जनरली प्ले अ इम्पैक्ट रोल ऑन द ह्यूमंस डिजीजेस ऑल्सो। इट प्ले इम्पैक्ट रोल ऑन आईज विजन। हमारी आंखों का जो विजन होता है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सांस लेने में अस्थमा के पेशेंट्स वो भी प्रॉब्लम होने लगता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस डिजीज इज दैट ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन ह्यूमन बींग्स
faces and human beings generally refers to as a lung cancer। इंसानों को जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यहाँ तक कि उनको लंग्स कैंसर की भी शिकायत हो जाती है बाय द एक्शंस ऑफ एयर पॉल्यूशन। ये सब के सब एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू दैट द एजेंट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। जनरली अब जो हमारे एजेंट्स हैं वो पॉल्यूशन जब भी फैलाते हैं तो उनके कुछ मोड होते हैं, ठीक है, फैलाने के मोड होते हैं। जनरली इनके जो मोड है वो 3 फॉर्म्स में है, ठीक है। जो पॉल्यूशंस के हमारे मोड है वो 3 फॉर्म्स में, और 3 फॉर्म्स जो है वो क्या है? द फर्स्ट फॉर्म्स इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उनके जो बेसिस है वो उनकी ओरिजिन का मतलब होता है उनकी शुरुआत, जहां से वो शुरू होते हैं, ठीक है। ओरिजिन के नाम से हम उसे जानते हैं। एंड सेकेंड, ओरिजिन में 2 चीजें आती हैं, एक आती है प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। इनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, इसे भी हम कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ओके, हमने फर्स्ट केस देखा जो पॉल्यूशंस के एजेंट्स हैं वो 3 फॉर्म्स में है। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में, अगर हम देखते हैं उनकी जो शुरुआत है जहां से वो शुरू होते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स वी विल आल्सो डिस्कस। सेकंड जो है उनका on the basis of decompositions। on the basis of decomposition मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोज्ड हो जाना, और डिकम्पोज्ड हो जाना मतलब हम लोग 7th और 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एंड सेकंड इज नॉन biodegradable। okay, the first it is there biodegradable and non biodegradable। तो सेकंड टाइप्स हमने देखा यहाँ पे कि जो पहला टाइप्स था ओरिजिन के बेस्ड पे था, पॉल्यूशंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। थर्ड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशंस मतलब वो कैसे गलते हैं, जिसमें बायोडिग्रेडेबल आते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमने पढ़ा है। बायोडिग्रेडेबल मतलब समथिंग दैट आर टोटली मेल्ट एंड दैट आर टोटली मोल्ड इन द सॉइल कंप्लीटली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के कारण वो टोटली मेल्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं मिट्टी के अंदर, उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब समथिंग दैट आर नॉट मेल्ट एंड नॉट टोटली मिक्स्ड विद द सॉइल ड्यू टू माइक्रोब्स, जैसे पॉलीथीन हो गया, डीडीटी वगैरह हो गए, इनको इजीली डिसॉल्व नहीं होते हैं। और थर्ड है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि इनकी एग्जिस्टेंस पे है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि उनका जो अस्तित्व है, जो पॉल्यूशंस के अस्तित्व है वो 2 फॉर्म्स में है। द फर्स्ट फॉर्म इज दैट क्वांटिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वालिटेटिव। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करो, उनके अस्तित्व की बात करो, जहां पे वो एग्जिस्ट होते हैं, तो उनके 2 फॉर्म है, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, जो क्वांटिटेटिव मतलब होता है कंसंट्रेशन, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कितने फॉर्म्स में, कितनी मात्रा में है, ठीक है, वो आपका क्वांटिटेटिव होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल वे में क्वांटिटी का मतलब समझते हैं, क्वांटिटी का मतलब हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स होते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव का मतलब होते हैं क्वालिटी, उसमें कितनी क्वालिटी है, मतलब अगर थोड़ी सी क्वालिटी है तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट रोल प्ले करती है, ठीक है। हम अभी वो भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक टुडे आई हैव गिवन ओनली अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द पॉल्यूशंस, देयर टाइप्स एंड हाउ it is created by human beings and which type of problem they faced. So when we start next video, we will take all the important points like on the basis of origin, on the basis of decompositions, on the basis of existence. We will see in a detailed manner. Okay, till then whatever I have taught here, you all have to make a notes, and if you have any doubt you can ask me. Okay, thank you student.